So, hey my friends, welcome. So, this is the answer booklet of Riyadabi, and the question is all about the land reforms. Okay, I'm just telling you, you just have to pause the video and just like think thoroughly. If someone has asked you the same question, like what are the key hurdles in accomplishing the land reforms in India, and if you just like did it, if you just accomplish the kind of land reforms, means if you just do everything in a correct, in a right way, so what are the advantages that we can have? So this is the question here. And if you are really kind of preparing for the UPSC, if you are a serious UPSC aspirant, so you might know the answer, right? But how we can just write it, how we can just like use the words, the keywords or the concepts or the strategy, that's our point here. We are just learning, we're just trying to grasp the idea, like how did they write. I'm talking about the all the toppers, like we have been making the videos to make us understand, like to make ourselves understand, I would just say rather, because you know what happens with us, we know the answers, but when it comes to writing or when it comes to speaking those answers, we just don't understand because we don't speak or we don't write because we don't have the keywords, but we have that things in our mind. So that comes with the practice. So this is the video, and if you are interested, if you are still watching, so it means you are a serious UPSC aspirant, I guess, like you just want to crack the UPSC. So this is the video for you. If you are interested, you can just continue watching this video or just go somewhere else, and you know what I'm about to talk after that. So bring out the key hurdles that are being faced in accomplishing land reforms in India. So what are the key hurdles? Okay, क्या है key hurdles? Okay, क्या बड़ी रुकावटें हैं जो फेस की जा रही है? Okay, जो फेस की जा रही है, जो जूझी जा रही है, मतलब लड़ी जा रही है किससे? क्या अकॉम्प्लिश करने में, लैंड रिफॉर्म्स अकॉम्प्लिश करने में इंडिया में. Also discuss the advantages which can be reaped by accomplishing them in contemporary times. Okay, और हमें क्या डिस्कस करना है कि इसके फायदे अगर हम which can be मतलब इससे उठाए जा सकते हैं, गैदर किए जा सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फसलों को रखते हैं और उससे रिप करते हैं ना, मतलब काटते हैं, गैदर करते हैं, उसी के माध्यम में क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर इसे हम इसे अकॉम्प्लिश करते अब के दौर में, कंटेम्प्रेरी वक्त में. सो लेट्स सी हाउ डिड शी हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर. So this is the land reforms. Okay, I think, are you able to see the screen? Yeah, okay, it is. So land reforms were initiated soon after independence. Okay, so क्या कहा जा रहा है कि land reforms were initiated जब का मतलब शुरू कर दिए गए थे soon after, कब के, फौरन किसके बाद, independence के बाद, to provide farmers their due rights, मतलब farmers को उनके rights दिलाने के लिए. Reforms like जमींदारी abolition. ओके, मतलब एक जमींदारी अबॉलिशन क्या था कि ये जो इंटरमीडिएट्स की तरह काम करते थे गवर्नमेंट और कल्टीवेटर्स यानी फार्मर्स के बीच में, तो उसे हटा दिया गया. ओके, ये एक पॉइंट है इसका. टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्सेट्रा. अब यहाँ पे क्या देखिए, रिफॉर्म्स हो गया, जमींदारी हो गया. टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या था कि सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी टेनर प्रोवाइड करना, ओके, ओनरशिप प्रोवाइड करना टेनेंट्स को, वो वाली चीज़ें थी. रेगुलेशन, रेंट का कितना होना चाहिए, वो वाली सारी चीज़ें टेनेंसी रिफॉर्म्स में आती थी. और लैंड सीलिंग का क्या था, लैंड सीलिंग यानी कोई कितनी लैंड रख सकता है, कोई कितनी ज़मीन रख सकता है उसके लिए, और बाकी का सरप्लस मतलब आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड. ये सारी चीज़ें थी लैंड सीलिंग, यानी मतलब कोई इंसान कितनी ज़मीन रख सकता है, वो वाली बात हो रही. सीलिंग पता है ना आपको कि एक छत को कहते हैं हम सीलिंग के ऊपर वाली, तो कितने हद तक रख सकते हैं वो वाली बात हो रही है. वर्ड स्टार्टेड. ओके, वर्ड स्टार्टेड शुरू हो गए थे. However, land reforms could not be implemented properly. लेकिन फिर भी land reforms ना अच्छे से implement नहीं किए जा सकते थे, नहीं किए जा सके properly, मतलब अच्छे तरीके से. देखते हैं. Still, the key hurdles that being faced in accomplishing land reforms are. So अभी तक भी जो hurdles है, जो बड़ी रुकावट है जो फेस की जा रही है इन्हें accomplish करने में, से हासिल करने में, land reforms हासिल करने में, वो है यहाँ पे. देखते क्या क्या है. देखो, पहला है absence of land records. So, सब में पहले तो हमारे पास लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है. ओके, लाइक मिसिंग पेजेस, नो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस. जैसे हमारे पास लैंड रिकॉर्ड जो कितनी किसके पास ज़मीन है उसके पेजेस भी मिसिंग है, और कोई ऑर्गेनाइज कलेक्शन नहीं, अच्छे से कहीं रखे हुआ नहीं है. जैसे आज हम कंप्यूटर्स में फाइल स्टोर करके रखते हैं, कोई एक ऐसा शेल्फ होता है हमारे पास जहाँ हम सारे नोट्स जमा के रखते हैं, उस तरीके से कोई एक रिकॉर्ड्स नहीं है. लैक ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक विल टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म, मतलब लैक पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक, जो IAS मतलब जो हम हैं ऑफिशियल्स बनने वाले, उनकी भी क्या तमन्ना नहीं है, इच्छा नहीं है. पॉलिटिशियंस की भी तमन्ना नहीं कि इसे लैंड रिफॉर्म्स को हम अच्छे से क्या करें, इंप्लीमेंट करें, मतलब इसमें कमी देखी जा रही है, ये बोलने का मतलब है, राइट. फिर देखिए क्या है, लूप होल्स इन द लॉज, मतलब लूप होल्स है इन द लॉज में, कानूनों में लूप होल है, पैसे देकर काम निकलवाना बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ें, और किस तरीके से कोई जुर्म करने के बाद बच जाते हैं, वो वाला लूप होल. दैट वर एक्सप्लॉयटेड बाय रिच फार्मर्स. ओके, जो किसके जरिए एक्सप्लॉयट किए गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, रिच फार्मर, जो अमीर क्या है, फार्मर्स है. ओके,
selling of land to a distant family member and buying it later under land selling laws। मतलब किसी को क्या करना है, सेल कर देना है, बेच देना है फॉर फैमिली मेंबर्स को, और बाद में वही चीज लैंड सीलिंग अंडर के लैंड सीलिंग लॉस के अंदर खरीद लेना, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। फिर लैक ऑफ, क्या आपको दिख रहा है सारी चीजें, राइट। देखिए लैक ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट। अब देखिए कोई आंदोलन करने के लिए, अभी तो होगा लेकिन तब की बात हो रही है कि कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट भी अब नहीं है in the country to demand implementation of reforms। I think like there are organized peasant movements, I guess so, means I might have read somewhere, so yeah, we will just like research on it। So in the country to demand implementation of reforms, so ये क्या कह रहा है कि organized peasant movement नहीं है जो implement कर सके इन सारे reforms, मतलब डिमांड कर सके इन implementation के लिए, इन reforms के implementation के लिए। ओके फिर उसके बाद देखिए politicization of the issue, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स का यहाँ पे अराइवल हो रहा है कि किस तरीके से लीडर्स आके इस इश्यू को पॉलिटिकल व्यू देंगे, राइट। डिवाइड और डिवाइडेड ऑन लाइंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अगर मतलब कास्ट और रिलीजन, दूसरी कोई बात नहीं, कास्ट जात के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या करेंगे, चीजों को बांट देंगे। राइज ऑफ डोमिनेंट कास्ट लीडिंग टू अदर्स बीइंग मार्जिनलाइज्ड। तो अब ये क्या होगा कि जो कास्ट के आगे बढ़ रहे हैं वो आगे ही रह जाएंगे और पीछे वाले मार्जिनलाइज हो जाएंगे जो दूसरी कास्ट के या धर्म के, राइट। फिर देखिए left wing extremism has become a big hurdle in implementing land reforms in the eastern in the eastern states। अब ये क्या, ये लोग ना रिवोल्यूशन लाकर चेंज लाना चाहते हैं, रिवोल्यूशन के जरिए चेंज चाहते हैं, और ये जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसे मतलब रिजेक्ट करते हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। वो वाली बातें यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। ये क्या बहुत बड़ा हर्डल है इम्प्लीमेंट करने में लैंड रिफॉर्म्स में, ईस्टर्न स्टेट्स में खास करके। द एडवांटेजेस दैट कैन बी रिप्ड। ओके तो एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम इसे ये कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके एडवांटेज क्या होगी। दैट कैन बी रिप्ड बाय अकॉम्प्लिशिंग देम आर फॉलोज। ओके मतलब जो हमें एडवांटेजेस होने आ रहे, फायदे मिलने आ रहे हैं अकॉम्प्लिश करने के बाद, हासिल करने के बाद ये लैंड रिफॉर्म, उसका क्या देखिए, इट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ डिस्पैरिटी अमंग फार्मर्स। ओके जैसे ये, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। एज स्मॉल एंड मार्जिनाइज्ड फार्मर्स विल गेट देयर रिक्विजिट लैंड। ओके मतलब क्या है कि डिस्पैरिटी, मतलब जो इनइक्वलिटी होती है उसी को बोलते हैं हम, कि कोई बड़ा हो रहा है कोई छोटा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा उसको फार्मर्स के अंदर, जो छोटे हैं मार्जिनलाइज फार्मर है, और जिसको जितना लैंड चाहिए वो उतना मिल जाएगा, जितना रिक्वायर्ड लैंड है वो उतना मिल जाएगा, ये बात हो रही है। इट विल इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड दस जीडीपी इन टर्न। अब क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब फसलों की पैदावार ज़्यादा होगी और हम बेचेंगे और जीडीपी इससे बढ़ेगी, सबको मतलब नौकरियां मिलेगी, नौकरी मतलब खेती बाड़ी में ज़्यादा काम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, वो बात हो रही है यहाँ पे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी रिड्यूस एज लैंड रिफॉर्म्स विल बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये भी क्या हो गया, कम हो जाएगी अगर ये रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं सक्सेसफुली, अगर अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद देखिए it will help us implement the Gandhian vision of villages, okay, such as self-sufficient little republics, okay, self-sufficient little republics। तो ये क्या कर रहे हैं, जो गांधी जी का विजन था कि विलेज में भी क्या हो, विलेज भी अपने आप पर खुद पर निर्भर रहे, दूसरों पर निर्भर रहे, और छोटी सी उनकी दुनिया हो, छोटे से उनका जैसे देश की तरह वो अपने चले, पैसों के लिए वो स्टेट पर निर्भर ना रहे, खुद से ही सारी चीजें चले, ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। Thus land reforms must be implemented effectively। मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स है वो अच्छे से हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो हमें क्या करना है, डिजिटल बनाना है लैंड रिकॉर्ड्स को, जो भी सारे कागजात है उसे डिजिटली अपलोड करके कहीं वेबसाइट बनाकर उसे ये करना है। और मॉनिटरिंग बाय ऑफिशियल्स, और ऑफिसर्स के द्वारा इन्हें मॉनिटर करना है। सिविल सोसाइटी एंड मेकिंग फार्मर्स अवेयर आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस रियलिटी। और इस सिविल सोसाइटी के जरिए क्या करना है, रिकॉर्ड्स को मॉनिटर वगैरह करना है, और जो फार्मर्स को इन्हें भी अवेयर करना है, जागरूक करना है, अगर इसे हमें रियलिटी बनाना है सारी चीज़ों को, अगर लैंड रिफॉर्म्स को अच्छे से सारी चीज़ों को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो सही, राइट। So this was the video, and if you have enjoyed this video, you just have to like the video and just let me know in the comment section. And yeah, thanks for watching.